All right, hi everyone. Good evening. Yeah, hi Tanmay. Hi Siddhi. Good evening Rudra. Good evening Kushal. Hi Pratyasha. Good evening Anusha. Hi Shreya. Hi Sanika. Hi Rugved. हाँ डाउट्स करेंगे ना डिस्कस. राइट सो एक बार क्विक रिकैप देख लेना है अगर आप लोगों को लास्ट क्लास का तो वो भी कर सकते हैं. राइट सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड्स के ओवरलैप्स का डिस्कशन किया था. राइट एंड इसमें हम लोगों ने बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप्स का डिस्कशन किया था बिटवीन s and s orbital, p and p orbital, as well as s and p orbitals, right? And that helped you to understand this example of O2 and its paramagnetic behavior. इसमें किसी को कुछ डाउट था? Something you would want to ask before we move on today? हाँ बोलो साहिल. सर हमने ऑर्बिटल्स का शेप देखे, अभी तक उसमें इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं ना? नहीं किए थे ना कल लास्ट क्लास में जब हम लोग ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे थे, ऑक्सीजन गैस का O2 मॉलिक्यूल का. इसमें ये मैंने आपको फिलिंग ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन. सर, इसमें होमो न्यूक्लियर इसमें किया था, उससे पहले नहीं किया था ना? नहीं उसके पहले तो हम लोग सिर्फ समझ रहे थे कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे. ओके सर. हाँ बोलो सुमित. सर वो नीचे जो था कर सकते हैं नीचे. हाँ सर, इसमें एनर्जी में आपने क्या मतलब वो कैसे क्या आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट? हाँ मैं आज इनफैक्ट उसी के बारे में बात करने वाला हूँ. दैट ये जो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहता है ना, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ओनली. However, the first example that I discuss in general, ये O2 का example is something which gets intuitively explained also. कि 1s से बन रहा है, 2s के साथ combine होके बन रहा है, and then 2p के साथ में combine होके molecular orbitals बन रहा है, right? And ये उनका relative order of energy है. अब इसमें सिग्मा का एनर्जी, सिग्मा 2pz का एनर्जी कम होगा as compared to pi 2px and pi 2py, क्योंकि सिग्मा overlaps are generally better. ओके सर. तो ये एक सिंपलर अंडरस्टैंडिंग था जो मैं आपको बताना चाहूँगा. बट हाँ, आज की क्लास का एक्चुअली डिस्कशन मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा, वेयर इन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ molecular orbitals, but something which is only experimentally understood. ठीक है, ये मैंने ऐसे जेडी ली का ही यहाँ पर फिगर पेस्ट किया हुआ है, ये सी का टेक्स्ट है. तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. हाँ अब इसके बाद में हाँ राइट. सो ये पूर्ण आपका जो डाउट है ना, दैट इज अ क्लासिक डाउट. सो आई विल लाइक शेयर दिस डाउट विद एवरीवन. तो पूर्णा का डाउट है दैट when we studied bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals, we understand that orbitals are interfering constructively and destructively. Now her doubt is that is it happening at the same time? Are these orbitals or these wave functions interfering simultaneously? Now ध्यान से सुनना पूर्णा. Linear combination of atomic orbitals is a way of understanding molecular orbitals. Now when we are trying to understand about molecular orbitals, we come across this understanding that around the nuclei in a molecule there are many molecular orbitals, and
this technique, ठीक है, this is not the only technique, there are other techniques also. This technique, linear combination of atomic orbital, helps us understand these molecular orbitals. Now, how it helps us understand, or what that understanding is, that there are some molecular orbitals which can be understood as the, or which we call as bonding molecular orbitals. They can be understood as पॉजिटिव ओवरलैप्स, ठीक है। जो पॉजिटिव ओवरलैप्स से हम लोग जो मैथमेटिकल रिजल्ट निकालते हैं, दे मैच वेरी वेल with what we experimentally understand about these bonding molecular orbitals. Similarly, there are certain molecular orbitals which we call as anti-bonding molecular orbitals, something like this. And when we take a negative overlap, like we do a linear combination only, but usme when we talk about a linear negative overlap of atomic orbitals, it explains really well the anti-bonding molecular orbitals. So it is not something to be visualized that wave function 1 and wave function 1 and unka interference is something which is happening simultaneously or not. These are mathematical solutions of what could be the stable state in which electrons can be present around the nucleus. So this is one stable state in which electrons can be present around the nucleus. This is another stable state in which the electrons can be present around the nucleus. One is of a lower energy, other is of a higher energy. The lower energy ones are getting explained by the positive overlaps. The higher energy ones, they are getting explained by these negative overlaps. समझ में आया पूर्ण आपको? So this is a approach. LCAO, linear combination of atomic orbital, is a preferred approach because of its mathematical nature. Otherwise there is another one, आप जैसे JDL वगैरह खोल के देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको यूनाइटेड एटम मेथड करके होता है एक, which goes in a different way of how to derive molecular orbitals or understand molecular orbitals. But this LCAO, linear combination of atomic orbitals, is the preferred one. हाँ, now, अच्छा हाँ, दिशा का भी exactly यही doubt था. So Disha is asking the same doubt, that how can exactly two atomic orbitals undergo both constructive and destructive interference simultaneously. ये हर साल आता है, and ये doubt वही बच्चे पूछते हैं जिनको actually topic समझ में आता है. Now I understand at least class में 2 बच्चे तो हैं जिनको ये topic समझ में आ रहा है. Otherwise, this is something which only strikes when you put some effort into understanding this concept. Then next, यश का डाउट है, कैन यू एक्सप्लेन जिरेड एंड अनजिरेड अगेन. मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन अगेन की बात नहीं आती है यश, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन ही नहीं किया था. मैंने जिरेड अनजिरेड के लिए आपको बोल दिया था दैट उसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है, दैट व्हाट डू वी कॉल एज जिरेड. एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जिरेड कब कहते हैं? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जब हम इस तरीके से ऑपरेट करेंगे, like we will rotate it around the internuclear axis by 180 degree and perpendicular to the internuclear axis by 180 degree. और ऐसा करने से उसके लोब्स का साइन अगर चेंज नहीं होता है तो उसको जिरेड कहते हैं, और ऐसा करने से अगर उसके लोब्स का साइन चेंज हो जाता है तो उसे अनजिरेड कहते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने लेट्स से पाई पी के बारे में बात करेंगे, तो ये पाई पी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, ठीक है. तो एक बार इसको अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस
ठीक है, और एक बार परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस 180 डिग्री से रोटेट करो, राइट। क्या इसमें लोब्स का साइन चेंज हो रहा है? द आंसर इज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिरेट। लाइक इस तरीके से ये डिस्क्राइब करा जाता है। बट मैंने आपको क्या बोला कि इसमें रादर देन गेटिंग इनटू दिस एक्सप्लेनेशन, लाइक आप ये चीज ध्यान में रख लो, ठीक है। नहीं, एक मिनट, क्या था यहाँ पे? साइंस, if the sign of the lobes is unchanged, then it is gyrate. If the sign of the lobes change, then it is ungyrate. एक मिनट, मैंने इसके बारे में, सॉरी, मैंने वो सिग्मा पी का बनाया था, वही मैं सोचूं क्या गड़बड़ होगी। इट वाज नॉट पाई पी, इट वाज सिग्मा पी। हाँ, तो इसमें रादर देन गेटिंग देयर, मैंने आपको बोला था कि ये आप ध्यान रख लेना, सिग्मा और सिग्मा स्टार लाइक जिरेट अनजिरेट रहेंगे एंड पाई में उल्टा रहेगा, ठीक है। हाँ, वो मैं बताऊंगा अभी बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखना होता है, अभी मैंने वो सिखाया नहीं, वो मैं आज कराऊंगा आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखते हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक का भी मैं आपको वही बताने वाला हूँ अभी। लाइक दिस वाज पार्शियली कंप्लीट इन द लास्ट क्लास, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट टुडे एज वेल। सो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था दैट जब हम लेट्स से O2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक, तो O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बन रहा था? वी हैड वन ऑक्सीजन एटम एंड अदर ऑक्सीजन एटम, एंड उनके ऑर्बिटल्स का हम लोग ओवरलैप करवा रहे थे और उनसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे थे, ठीक है। वंस दे आर देयर, देन वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन दोज ऑर्बिटल्स, ठीक है, फॉलोइंग द सेम सेट ऑफ रूल्स एज वी वर टॉकिंग अर्लियर। अच्छा, नाउ, हाँ बोलो सुमित। सर हाँ, सर इस डायग्राम में जो 2p का सिग्मा है सर, नीचे ब्लू वाले में उसका नीचे और रेड वाले में उसका ऊपर क्यों है? तो यहाँ पर अब आप, वही तो मैंने आपको बताया ना, सिग्मा ओवरलैप और पाई ओवरलैप में कौन सा ओवरलैप अच्छा होता है? सिग्मा। सिग्मा, राइट। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इनके बीच में सिग्मा ओवरलैप हुआ, तो जो बॉन्डिंग है वो काफी स्टेबल रहेगा और एंटी बॉन्डिंग काफी अनस्टेबल रहेगा, वर्सेस सेम एनर्जी के दो पी ऑर्बिटल्स में पाई ओवरलैप हुआ, तो उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेगा, बट बॉन्डिंग स्टेबल होगा, बट इतना स्टेबल नहीं होगा जितना सिग्मा था, एंड एंटी बॉन्डिंग भी उतना अनस्टेबल नहीं होगा जितना सिग्मा था। तो ये पाई वाले आ गए और ये सिग्मा वाले आ गए, समझ में आया? कहाँ गया सुमित, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, वो मीटिंग से बाहर निकल गया। एनीवेज, यश तुम्हारे क्वेश्चन पे अभी हम आएंगे, थोड़ी देर में रुको। ऑल राइट, सो कमिंग टू दिस पार्ट where we talk about the case of two atoms combining to form molecular orbitals. Now इसमें नोटिस करना, the order, ठीक है, the relative order of energy of molecular orbitals, this is something which I said is experimentally determined in simple homonuclear diatomic molecules, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल है ये? जैसे मैंने आपको बताया O2 का,
F2 का, ठीक है। इनके केस में दिस इज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी दैट वी फाइंड, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2px एंड देन सिग्मा स्टार 2px। उसके एक्चुअली इसमें इसने x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर किया हुआ है, अदरवाइज टिपिकली हम लोग z कंसिडर करते हैं, ठीक है। दिस में इट हैज अज्यूम्ड x टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो चाहिए तो अपन इसको z भी बना देते हैं और r केस, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से इसी चीज की आदत डाले हुए हैं। ठीक है। spectroscopy is a experimental technique in which they understand the frequency or wavelength of photons that get absorbed or emitted, and उससे energy levels का idea लगता है, ठीक है। अब यही चीज किन एग्जाम्पल्स में है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, दिस इज समथिंग फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ही समझ में आता है। O2 F2 के केस में तो ये तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स था, ठीक है। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट से इनके आयंस O2 माइनस, O2 2 माइनस, लाइक इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है आपका सुपर ऑक्साइड आयन, पर ऑक्साइड आयन, ठीक है। हाँ राइट, यहाँ पे भी सिग्मा स्टार में भी 2pz इनमें, या फिर F2 माइनस O2 प्लस, ठीक है, इन आयंस में। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट सम हेटेरोन्यूक्लियर एग्जांपल लाइक O और F कंबाइन कर दिया, राइट, F2 माइनस, F2 प्लस, इन सब में भी, ठीक है, यही रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स मिलता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड है। अब नोटिस करना, ठीक है, यहां पर, अरे यार, ये पूरा एक्सप्लेनेशन में ही pz और py यूज किया गया है, लेट मी नॉट यूज दिस, ठीक है। इनफैक्ट इफ यू विल एक्सक्यूज मी, मैंने ये px py नोटिस नहीं करा इसमें, चलो ठीक है, इसमें मीजलर में तो ये और ट्रिकी सा दे रखा है, ठीक है। एनीवेज लेट्स फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आप लोग वो px py और pz को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना जब आप नोट्स बनाओगे खुद के, ठीक है। अब नोटिस करना that in certain cases, especially in lighter elements like boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, इनफैक्ट यहां पर इन्होंने नाइट्रोजन दिया हुआ है, नहीं, बट नाइट्रोजन में नहीं रहता यार, ये तो क्या हो गया, ठीक है, लेट मी एक्चुअली टेक दिस अवे।
let me actually use this. ओके, ज्यादा ही डिस्टॉर्ट हो गया. एक मिनट ना गाइस, गिव मी जस्ट वन मोमेंट. आई विल बट आप लोग इसमें आपको ना, मेरे को लग रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. So, ठीक है, आप इससे भी कंफ्यूज ही हो जाओगे. लेट मी नॉट यूज दिस ऑल्सो. लेट मी कीप थिंग्स सिंपल फॉर यू. द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसके लिए देखना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ठीक है, इतना ध्यान में रखो. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, followed by sigma 2pz, then pi 2px and pi 2py, followed by pi star 2px, pi star 2py, and then sigma star 2pz. Okay, so this is found in which cases? This is found in these set of examples. ठीक है, this was as per that diagram जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. However, अब यहां पर नोटिस करना, in case of lighter elements, there is a different relative order of energy. ठीक है, ये एनर्जी का relative order है. In case of lighter elements, which would be the cases? N2, ठीक है, N2 के साथ associated ions, C2, C2 के साथ associated ions, right? B2, Be2, Li2, right? इनके ions मतलब इनके combinations जो रहेंगे उनमें, ठीक है, as well as ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना NO, NO प्लस, CO, NO माइनस, राइट, इनके जो कॉम्बिनेशन रहेंगे, इवन हेट्रो डाइन्यूक्लियर एटम्स. ठीक है, इनके केस में
there is a slight change. कैसा है वो change? Observe करना. I'll highlight that change over here. This sigma 2pz is relatively higher in terms of energy as compared to pi 2px and pi 2py. यहाँ पर there is this slight change that happens in the relative order of energy. Okay, this is something which I have mentioned in the form of the energy diagram also. यहाँ पे आप notice करना, इन्हीं का ये energy diagram आप notice करना. And this is something which is attributed to a phenomena called as SP mixing. ठीक है. So जो यश तुम पूछ रहे थे, उसके लिए ध्यान से यहाँ पे सुनना. So this concept of SP mixing is wherein what we say is the 2s and 2p orbitals, the 2s and 2p orbitals of an atom, ठीक है, and 2p में भी कौन सा वाला है यहाँ पे? 2pz, that is the one that we are talking about. They have relatively lower energy gap and have same symmetry. तो अभी इसके पहले जब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो आपने नोटिस किया था कि हमारे जो क्राइटेरिया थे लीनियर कॉम्बिनेशन के, उसके हिसाब से हमने 2s का 2s के साथ में ही ओवरलैप कराया था. ठीक है. एंड 2p का से 2pz था, तो उसका 2pz के साथ में ही ओवरलैप कराया था. एंड इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे थे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. However, as part of this concept, SP mixing, what it is saying is that because of their similar symmetry, right, because of their same symmetry and relatively lower energy gap in case of these lighter elements, okay, in these lighter elements that we spoke about, इनमें the linear combination happens between these four. इन चारों का linear combination लिया जाता है and उससे फिर 4 molecular orbitals बन रहे हैं, जिनके relative order में we see this fluctuation coming in. Now, as part of remembering, सबसे important आपके लिए यही रहेगा that you remember this relative order of energy of molecular orbitals. ठीक है. जो higher elements है, like higher elements में भी ये examples O2 F2, ठीक है, like you might find somewhere in some book कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर है और ये लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स वाला मत ध्यान में देना, दैट्स नॉट अ करेक्ट आर्गुमेंट. ठीक है, यू माइट फाइंड दैट समवेयर. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप NO माइनस का देख रहे हो, तो NO माइनस में जिसमें भी 15 इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं, इनफैक्ट NO में ही NO माइनस की भी जरूरत नहीं पड़ी, NO में ही 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें भी यही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो हो रहा है. ठीक है. So don't go for that 14 electron thingy. Remember these cases. यहाँ पर this is the relative order of energy, and in these examples, these common examples, ठीक है, और भी रहेंगे इसी तरीके से इन्हीं के combination, like बोरॉन और कार्बन का combination,
तो उसके लिए भी यही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है, ठीक है। एंड इस एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिए ये जो एक्सप्लेनेशन है एसपी मिक्सिंग, उसकी भी डिटेल्स में घुसने की जरूरत नहीं है आपको, बस उसका ऊपर ऊपर का सुपरफिशियल पर्सपेक्टिव इतना ध्यान में रख लो दैट इट इज बिकॉज ऑफ यहां पर इन केसेस में, ठीक है, एज यू कैन अंडरस्टैंड इन हायर एटॉमिक ऑर्बिटल सॉरी हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले केसेस में द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज इन अ वे कि 1s के साथ ओवरलैप करता है, 2s के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है, एंड pz के साथ में ओवरलैप करता है, एंड उनसे ये रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ जाता है। बट इन केस ऑफ these lighter elements what we say is that ये जो 2s है और ये 2pz है, इनकी एनर्जी गैप्स रिलेटिवली कम है, प्लस इनकी सिमेट्री जो है दैट प्लेज अ रोल, एंड व्हाट कम्स आउट एज अ कंक्लूजन is called as sp mixing, and इनका linear combination is what gives us the molecular orbitals, and उनका relative order of energy is what we have seen over here, ठीक है। I know it's something which is not your cup of tea, and the only thing which I would want you is to remember these key information pieces। एक तो relative order of energy रहेगा, एंड ये एक एसपी मिक्सिंग का पॉइंट रहेगा कि ये रिलेटिव ऑर्डर में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर का रट्टा मारना है आपको विदाउट हेजिटेशन, और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका मैंने ये एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है, किस केस में, जहाँ पर लाइटर एलिमेंट्स का केस था, तो उसमें आप ये नोटिस करोगे कि ये सिग्मा 2pz का एनर्जी मैंने पाई 2px पाई 2py से हायर बनाया है, ठीक है। दिस इज रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू जहां पर पहले सिग्मा 2pz वाज एट अ लोअर एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py, राइट। सो दिस इज वेयर दैट change in energy level is। change in relative order। अब इसके हिसाब से, ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट आपके सामने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स तैयार हो गए, जिनको आप एक एक करके एनालाइज करना शुरू करोगे, एंड एज पार्ट ऑफ दैट एनालिसिस यू विल डिटरमाइन टू थिंग्स about these diatomic cases। One would be the bond order, right? That bond order is calculated by a simple formula in which you count the number of bonding electrons and the number of anti-bonding electrons, and you subtract the anti-bonding electrons from the bonding electrons, and you divide by 2 to get the bond order, and this bond order is representative of the relative stability that वो diatomic species exist करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो like what will be some features of it। And the second one that you will have to also remember is the magnetic nature, right? Apart from this bond order, also magnetic nature पे आप comment करोगे, like if there are unpaired electron
then we will say that the species is paramagnetic. Otherwise, it's diamagnetic. ठीक है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा. तो अब हम एक एक करके ये एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. एंड ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड इन दोज ऑर्बिटल्स विद द रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर. ठीक है, सो यहाँ पर एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, नोटिस करना है यहाँ पर मॉलिक्यूल है, उनका बॉन्ड ऑर्डर है, मैग्नेटिक नेचर है, एंड उनके बारे में कुछ कुछ रिमार्क्स रहेंगे. तो सबसे पहले आप H2 पे जाओगे. ठीक है, H2 में कैसा रहेगा? यू रिमेंबर द फिलिंग इन विच वी हैव टू गो. ये लो लाइटर एलिमेंट्स के लिए कैसा ऑर्डर रहेगा हमारा? लाइटर एलिमेंट्स के केस में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. राइट, सो ये क्या क्या दिख रहा है आपको? सिग्मा 1s. अच्छा, मैंने इनफैक्ट ब्लू पिछली बार इसके लिए यूज किया था ना, बॉन्डिंग के लिए. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, दिस विल बी सिग्मा 2s. ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या रहेगा? सिग्मा स्टार 2s. देन यहां पर इन लाइटर एलिमेंट्स के लिए कैसा बताया था मैंने आपको? वी विल हैव फर्स्ट pi 2px and pi 2py. Then you will have sigma 2pz. Then you will have pi star 2px and 2py, and then you will have sigma star 2pz. ठीक है, अब इनमें आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करो. यहां पर अब आप नोटिस करोगे बॉन्ड ऑर्डर हमें डिटरमाइन करना है अगर, तो हम H2 के इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों यहां पर ही फिल हो गए. राइट, तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? 2. कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? 0. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1. व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक नेचर? बोथ आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी, बोथ आर पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक. ठीक है, He2 पे आ जाओ. He2 में कैसा रहेगा? ठीक है, इनफैक्ट इफ आई say would want to interest you in something like this, H2 minus या H2 plus. ठीक है, H2 plus would be the simplest molecule का केस. तो इसमें आप क्या बोलोगे? H2 plus में H2 plus में कैसा रहेगा? There will be just one electron, और वो कहाँ पे रहेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. राइट, सो 1 minus 0 upon 2. तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा उसका? 0.5. एंड नेचर कैसा रहेगा उसका? बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट विल बी पैरामैग्नेटिक. ठीक है, He2 में आप ऑब्जर्व करो,
He2 में चार इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कैसे फिलअप होंगे? दो यहाँ पर, फिर दो सिग्मा स्टार 1s में, राइट? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दो हो गए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी दो हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया यहाँ पे 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो उसका यहाँ पर इम्प्लीकेशन क्या है? दैट इट इज unlikely to exist. Zero bond order implies what? Zero bond order implies that it is unlikely to exist, and that is what happens with He2 as well, right? इसका like we don't really find He2 and इसको भी डिटेक्ट करा जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि डिटेक्ट करा जाता है, डिटेक्ट करा जाता है वेरी लो प्रेशर्स एंड लो टेम्परेचर कंडीशंस पे, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर कंडीशंस में, एंड उसमें भी इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, लाइक जो बॉन्ड की एनर्जी है, दिस इज फाउंड टू बी अराउंड 0.01 जूल पर मोल, ठीक है? H2 में बॉन्ड एनर्जी कितना है? 436 जूल पर मोल, इनफैक्ट किलो जूल पर मोल। ये He2 इज लाइक डिटेक्ट करा जाता है बट इट इज एज गुड एज नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है? देन Li2 पर आ जाओ, ठीक है? Li2 पर कैसा रहेगा? Li2 पर when you do the calculation, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे आप यहाँ पर? दो सिग्मा 1s में, दो सिग्मा स्टार 1s में, एंड फिर दो भरेंगे सिग्मा 2s के अंदर, राइट? So now if you count how many bonding electrons, there are 4 bonding and 2 anti-bonding. So you apply the formula to get the bond order and you get the answer as 1. So you are like Li2, ठीक है? Li2 आपको मिल रहा है, मतलब एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड मैग्नेटिक नेचर भी उसका यहाँ पे डायमैग्नेटिक दिख रहा है। नाउ द थिंग इज Li2 is also observed in vapor phase, ठीक है? नॉर्मल जो हमारी रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में है, उसमें लिथियम इज बेटर ऑफ कंबाइनिंग विद मोर लिथियम एटम्स, ठीक है? देन इट इज नॉट समथिंग लाइक जैसे अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस O2 से ओजोन बन सकता है ना, वैसे यहाँ पर व्हाट वी फाइंड इज लिथियम इज बेटर ऑफ विद combining with more atoms of lithium and existing in a solid form, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि Li2 मॉलिक्यूल हमें लाइक हमारे अराउंड नहीं दिख रहा तो हम लोग उसका एग्जिस्टेंस डिनाई कर रहे हैं। इट इज समथिंग विच इज एक्चुअली डिटेक्टेड क्वाइट कॉमनली इन वेपर फेज, ठीक है? देन Be2 मॉलिक्यूल के बारे में देखना, ठीक है? Be2 मॉलिक्यूल के बारे में आप करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने। कैसे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप? 1 2 3 4 5 6 देन 7 8, राइट? यहाँ पर again what we find is that the bond order is coming out to be 0, right? Similarly Be2, it is found to be like very rare to exist, and इसका again जो bond energy determine करा जा रहा है, that is also found to be very weak. B2 and C2, like इन पे आप आओगे तो B2 में कितना रहेगा? B2 में you can do the counting now. B2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर रहे हैं, तो ये 8 तो हो गए। फिर अब इसके बाद नोटिस करना, ये 9 रहेगा और ये 10 रहेगा, ठीक है? हंट्स रूल फॉलो करना है आपको। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए, इसके बाद में ये 9th इलेक्ट्रॉन एंड 10th इलेक्ट्रॉन हंट्स रूल फॉलो करते हुए जाएगा, एंड दैट इज द रीजन दैट दिस विल शो अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है? तो यहाँ पर जिस तरीके से दिखा आपने, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है।
अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में। वैसे आप C2 के बारे में सोचना, ठीक है। यहाँ पे C2 का एग्जाम्पल भी इंटरेस्टिंग है, दिस इज ऑल्सो मस्ट रिमेंबर एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज नॉट कार्बन क्वाड्रुपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। समटाइम्स स्टूडेंट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस लाइक कि क्वाड्रुपल बॉन्ड वाला केस आ गया C2, बट C2 ऐसा नहीं है। C2 के केस में अभी कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 11 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर 2 मिलेगा, लाइक व्हेन यू कैलकुलेट द बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड डू द कैलकुलेशन, बॉन्ड ऑर्डर 2 मिलेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो ये डायमैग्नेटिक मिलेगा आपको। हाउएवर यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए है, नोटिस करना फॉर C2, ठीक है। ओके, तो C2 इज फाउंड, ठीक है। C2 molecule is found but in gas phase, and this is somewhere around like if you would want to take an experimental anecdote, around 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके ऊपर के टेम्परेचर के आसपास ही मिलता है, ठीक है। सो इट इज नॉट समथिंग विच इज फाउंड रेडिली। एंड इसमें यहां पर नोटिस करना, इट हैज गॉट 2 पाई बॉन्ड्स, नो सिग्मा बॉन्ड्स। लाइक इनफैक्ट VBT में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा बट पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टैंड अलोन मैनर में, बट यहां पर यू कैन सी दैट देयर आर 2 स्टैंड अलोन पाई बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। यश, जो तुम कह रहे हो दैट इज फॉर C2 2 माइनस। लेट्स से इफ आई आस्क यू अबाउट C2 2 माइनस, जो कार्बाइड आयन होता है, कैल्शियम कार्बाइड में आपको देखा होगा, आई थिंक ये आयन इज समथिंग व्हिच यू वुड हैव कम अक्रॉस, ठीक है। इसका मुझे बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर बताओ कैसा रहेगा, हाउ वुड द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर लुक लाइक इन केस ऑफ कार्बाइड आयन। करेक्ट, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है। यहाँ पे आप C2 2 माइनस का आपको निकालना है, तो C2 2 माइनस मतलब कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिलअप करने हैं, तो यहाँ पर आपने 12 कर दिए, उसके बाद ये 13 और ये 14 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएंगे। नाउ बेस्ड ऑन दिस बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे, तो you will get the answer of bond order to be 3 and the nature to be diamagnetic. As you can see, there are no unpaired electrons in this C2 2 minus ion, ठीक है। In fact, to give you some experimental anecdote from a book, like ये जो C2 है गैस फेज में, like इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम रहता है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर इसका बॉन्ड लेंथ यू कैन सी इज लेसर एज कंपेयर टू जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है। लाइक ये C2 2 माइनस में भी 3 है एंड ये एसिटाइलिन में भी बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है, ठीक है। सो दे हैव a lesser bond length as compared to C2 जो गैस फेज में है जहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर डेटा, मतलब ये तो मैंने जैसे ऐसे ही बता दिया आपको।
हाँ, तो तन्मय का क्वेश्चन है that how is it possible to have 2 pi bonds and no sigma bonds? तो तन्मय आपका डाउट एकदम सही है. Same goes for you, Yash, as well. That it is not something that we see in general, right? We don't see. That is the reason, like हम लोग जब कार्बन के बारे में नोटिस करते हैं, तो कार्बन इन से डायमंड या चारकोल या ग्रेफाइट, it tends to form sigma bonds, right? This isn't a stable allotrope which we commonly find around us, because 2 pi bonds without any sigma bond is not something which will be a more stable configuration. Like और carbon atoms आएंगे इसके पास में, so they will tend to then form sigma bonds together. This is just in you can say as part of validating what molecular orbital theory has taught us, we are trying to study. क्योंकि molecular orbital theory के पीछे का background क्या है, मैंने आपको वही बताया, that molecular orbital theory is a fundamental mathematical way of trying to understand bond formations by looking into the wave functions of these atomic orbitals and molecular orbitals. And उससे जो ये रिजल्ट आ रहे हैं, इनको हम लोग वैलिडेट करना चाह रहे हैं, इनको हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के साथ में टैली करना चाह रहे हैं. एंड वी आर फाइंडिंग दोज रिजल्ट्स. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट दीज रिमार्क्स आर ऑन द राइट हैंड साइड. हाँ, सो एमओटी में जैसे अभी कैसा है, मैंने आपको बताया, अभी हम लोग क्या डायटोमिक केसेस का ही डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, जब हम लोग तो अभी नहीं करते हैं, बट जब मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जाते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल O3 का भी केस अगर डिस्कस करते होते हैं, तो आपको मैंने जैसे बताया कि O3 में तो हमने VBT से कैसे समझा बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, ये हमने VBT से प्लस रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से समझा. बट जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से O3 पढ़ा जाता है, वी डोंट यूज रेजोनेंस. ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली 3 एटम्स और 3 एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, उनको समझा जाता है एंड उनसे ये अपने आप कंक्लूड होता है. लाइक देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस दैट इज यूज्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. So that way, molecular orbital theory is a more advanced version. However, it is highly mathematical in nature, and that is where, like, we, as part of studying the basics, don't get into much depth of molecular orbital theory and stick to the concept of VBT, the concept of resonance and all, when we are understanding these basics. ठीक है, अच्छा, वो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है. ठीक है, now अब आप नोटिस करना, अगर मैं N2 के बारे में, चलो ठीक है, आप लोग ही ट्राई करो. लाइक फटाफट मुझे ये कॉलम इन मॉलिक्यूल्स का फटाफट भर के दिखा दो. ठीक है, एंड इसमें डू रिमेंबर द डायग्राम. ठीक है, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी.
कैसा कैसा है। O2 और F2 में अलग रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी यूज करना है वर्सेस N2 CN CO CO CN माइनस NO NO माइनस NO प्लस में कौन सा एनर्जी लेवल यूज करना है जिसमें sp मिक्सिंग हो रही थी। ठीक है, तो मुझे ये रिजल्ट्स निकाल के दिखा दो फटाफट फटाफट। इन द मीन टाइम लेट मी टेक सम ऑफ द डाउट्स दैट यू गाइस हैव। हाँ, एक एक करके लेते हैं। साईराम का डाउट है, इन द एग्जाम डू वी टेल व्हाट टू यूज VBT और MOT। बहुत ही आपका सही डाउट है साईराम। तो ध्यान रखना, एग्जाम में कहीं पर भी डायटोमिक केसेस आ रहे हैं MOT यूज करो। ठीक है, कहीं पर भी 3 आइटम्स या उससे ज्यादा का केस आ रहा है VBT यूज करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई आस्क यू द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO माइनस या NO प्लस, तो आपको MOT यूज करना है। इफ आई आस्क यू द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO2 माइनस, तो चुपचाप VBT एंड रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना। ठीक है, अपना MOT का स्कोप सिर्फ डायटोमिक तक ही है। हाँ, बोलो हर्ष, तुम्हारा भी कोई डाउट था? अच्छा, यही डाउट था क्या तुम्हारा भी? अच्छा, C2 में था, क्या था डाउट? सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा, बेरिलियम के बारे में मैं आपको यही बता रहा था दैट Li2 डिटेक्ट होता है। ठीक है, वेपर फेज में, मतलब जैसे अभी आप रूम टेम्परेचर पे Li लेके आओगे तो Li तो आपको सॉलिड मेटल मिलेगा। ठीक है, बट आप इसको अगर हीट अप करोगे, इसके वेपर्स निकलेंगे और उन वेपर्स को आप एनालाइज करोगे तो उसमें एक्चुअली आपको Li2 के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाट MOT आल्सो प्रेडिक्टेड। बट इफ यू डू द सेम थिंग विद बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम भी एक मेटल है, इसको भी आप लेके आओगे आपको सॉलिड मिलेगा, राइट। इसको आप हीट अप करोगे तो बेरिलियम के वेपर्स ही मिलेंगे, बट आपको Be2 नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो एक्सपेरिमेंटली आप देख रहे हो कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी प्रिडिक्ट कर रही है कि भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर लाइक हीलियम 2 के केस में 0 रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। N2 के केस में कैसा आ रहा है? Bond order is coming out to be 3 and magnetic nature is coming out to be diamagnetic। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आप यही वाला रिलेटिव ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हो ना, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो रहे हैं इसमें इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। ये N2 में भी यही यूज करना है। ठीक है, तो यू हैव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, बट O2 में कौन सा यूज करना है? O2 में you will have to use O2 एंड F2 के केस में जैसा मैंने आपको बताया था, राइट। इसमें अब ये थोड़ा सा चेंज कर देना,
put this 2pz lower in energy and this pi 2px and pi 2py at a higher energy. किस केस में? इन दोनों के केस में, O2 और F2 के केस में, राइट. एंड देन यू फिल अप दीज इलेक्ट्रॉन्स. तो अब इसमें कैसा हो जाएगा? अब इसके बाद में आप फिल करोगे, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर ये 15 और ये 16. तो O2 में अब आपका बॉन्ड ऑर्डर आप देखोगे 2 आएगा और मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा आएगा. F2 में अब आप फिल करोगे तो ये 17 और ये 18th इलेक्ट्रॉन होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा और ये डायमैग्नेटिक आ जाएगा. समझ में आया प्रत्याशा आपको? आपने बीच में गलत आंसर दिया था. ठीक है. Cn माइनस CO NO माइनस NO प्लस, इसमें वही ओल्डर वाला ही फॉलो करना है. ठीक है. इनमें यू फॉलो द सेम वन जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे. राइट, यही वाला. और उसके हिसाब से आप आंसर करो. मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए देखो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना कि पेयर्ड अप है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो देखना पड़ेगा. जैसे चलो आप इनके केसेस में भी वापस से मैं या तो बना देता हूँ. ठीक है, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस ओवर हियर अगेन. ओके. अभी Cn माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वापस से 14 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. 6 कार्बन के, 7 नाइट्रोजन के और एक नेगेटिव आ गया, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो 14 इलेक्ट्रॉन वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, and you can get again that the bond order is coming out to be 3. And is there any unpaired electron? There isn't any unpaired electron, so it is diamagnetic only. Carbon monoxide, again 14 electrons, so it is coming out to be the same, 3 and dia. NO में कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इन केस ऑफ NO. नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप हो रहे हैं यहाँ पर? 14 इस तरीके से एंड 15वां यहाँ पे जा रहा है, राइट. ये समझ में आया? तो अब इससे बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो गया? 2.5 आ रहा है एंड नेचर पैरामैग्नेटिक आ रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. NO माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. NO माइनस का मुझे चेक करना पड़ेगा यार. इज NO माइनस पैरामैग्नेटिक? ये मुझे चेक करना पड़ेगा. मुझे थोड़ा डाउट तो इस पे लग रहा था कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या रहेगा. NO माइनस आई डोंट थिंक सो. ये मैंने करेक्ट एग्जांपल उठाया है. NO और NO प्लस तो ठीक है. NO माइनस आई डोंट थिंक सो. इसमें भी कोई ढंग की बुक देखनी पड़ेगी यार, ऐसे नहीं. मैं वही देखना चाह रहा हूँ यश कि
NO माइनस ऑक्सोएजेनाइड, क्या नाम है इसका, ऑक्सोएजेनाइड, नाइट्रोक्साइल आयन, नाइट्रिक ऑक्साइड आयन, कीटोमाइड, बाप रे। नॉट श्योर अबाउट दिस, थोड़ा लिटरेचर ही पढ़ना पड़ेगा इसके लिए तो। NO माइनस आयन, थिंक, नहीं तुम लोग गूगल मत करो, तुम लोग बहुत कचरा इकट्ठा करते हो गूगल से, so it is okay if you guys skip that. All right, NO माइनस का मुझे मिला, नीजलर में ही मिला, बट मुझे बॉन्ड डिस्टेंस मिला। हाउ डू आई गेट, NO माइनस का, सो NO प्लस का हम लोगों ने लाइक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जस्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट टॉकिंग अबाउट। तो NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 3 था एंड करस्पॉन्डिंगली बॉन्ड लेंथ इतना था, NO में 2.5 था, राइट। तो NO माइनस में बॉन्ड ऑर्डर तो 2 ही लग रहा है, बट आई नीड टू एक्चुअली वैलिडेट, या तो मुझे टाइम दो, मैं वैलिडेट करके बताता हूँ, लेट्स नॉट रश इनटू दिस। NO माइनस का इट शुड बी, मेरा कभी ध्यान नहीं गया इस पर, नहीं इट इज ऑल राइट, आई एम जस्ट वैलिडेटिंग, लाइक आई वुड हैव जस्ट gone ahead and answered this as 2 and this as then para, but I am just wondering कि इसको मैं एक बार वैलिडेट कर लेता हूँ। NO प्लस तो ठीक है, NO प्लस इज कंफर्म 3 एंड डाया, ठीक है। ये नाइट्रोसोनियम आयन तो खैर काफी कॉमन है। NO plus, ये NO minus is something which I'll double check for you and get back. हाँ मतलब in all likelihood it is like O2 only, Yash, but इसमें मैं unnecessarily without double checking comment नहीं करूँगा। I'll do that and get back to you. ठीक है। हाँ नहीं होता है, मतलब इसमें छोटी छोटी चीजों में लाइक गड़बड़ आ जाती है, लाइक exceptional bond order of CO plus is 3.5। अब मत पूछना मुझसे कि ये कैसे आ रहा है, बस ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब CO प्लस का निकालने जाओगे तो यू माइट प्रिडिक्ट 2.5 बट इट कम्स आउट टू बी 3.5। तो वो एक ऐसे रहती हैं थोड़ी थोड़ी चीजें जिनके ऊपर लाइक यू हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल। एनीवेज चलो
ठीक है, आप लोग ज्यादा रेलेवेंट एग्जांपल पे आओ। आपको एटलीस्ट इतना बेसिक तो निकालना आ गया ना, लाइक जो बेसिक बेसिक एग्जांपल्स उसमें बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालना है। अब you can go ahead and try an example something like this. Compare OO bond between these molecules or these compounds. Compare the OO bond, oxygen oxygen के बीच का bond. अब to provide you some hint, यहाँ पर आप notice करना, this is, ठीक है, यहाँ पर ये तो O2 molecule है, this is super oxide ion O2 minus, this is peroxide ion which is O2 2 minus. ठीक है, एंड दिस इज O2 प्लस आयन। ठीक है, इसको डाई ऑक्सीजनल कहते हैं, डाई ऑक्सीजनल, राइट, दिस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड आयन, दिस इज कॉल्ड एज अ peroxide आयन। इनमें कंपेयर देयर आर्सेनिक, देखो ना, आर्सेनिक की 5 वैलेंसी होती है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो AsF5 तो नॉर्मल रहेगा और F- के साथ डेटिव बॉन्ड बना सकता है ना। ठीक है, तो अब इनमें मुझे बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक नेचर, इनको कंपेयर करके बताओ। फटाफट फटाफट। करेक्ट है यश। बाकी और कोई भी तो आंसर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा पता पड़ेगा मुझे। करेक्ट। तो यहाँ पे आपने डिटरमाइन करा इनके केस में बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 2.5 आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पर दिस इज 1.5, right, and these first 3 are para, the last one is diamagnetic। यहाँ bond order 1 आ रहा है, bond strength will be decreasing, bond length will be increasing। ठीक है,
ऑलराइट, चलो कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ H2, H2 प्लस एंड H2 माइनस, इसका बताओ। बताओ ना हर्ष, इसमें क्या नहीं समझ में आया, कहाँ अटक गए? सो ये कंपाउंड्स में OO बॉन्ड कंपेयर करना है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड कंपेयर करना है। तो हम लोगों ने फोकस किया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा है यहाँ पर, तो यहाँ पे समझ में आया ये O2 प्लस आयन है, इसमें ये एज इट इज O2 है, इसमें ये O2 माइनस है, लाइक K प्लस एंड O2 माइनस आयन रहेगा, तो ये O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन रहेगा। ये Na2O2 में राइट Na प्लस आयन रहेंगे, और ये O2 2 माइनस आयन रहता है, पर ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब ठीक है, एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ कि चलो आपको यहाँ से यहाँ जाना नहीं आता था, बट अब यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन तो निकालनी आनी चाहिए ना। If I just ask you to compare O2 plus O2, O2 minus, O2 2 minus, तो इनका सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के आप उनमें ये कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, हाँ right, H2 will be more stable, but H plus or H as in H2 plus or H2 minus में which will be more stable? राइट, दोनों में यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ जाएगा, राइट। However, in terms of stability, right, if we try to compare that, then we understand that H2 plus is relatively more stable. अभी H2 minus में bond order same है, but it has got more anti-bonding electrons. हाँ, correct, यश, right. More the bonding electrons, like bonding electrons contribute to the stability, anti-bonding electrons, they decrease the stability. So between H2 plus and H2 minus, the bond order is same, but H2 minus is less stable due to extra electrons in ABMO, ठीक है। It results in more repulsions and longer bond length, ठीक है। All right, अच्छा, then there are these terms which are also sometimes used, ये आपको अभी तो काम नहीं आएंगी, बट आगे जब आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ये दो टर्म्स काम आएंगी, होमो एंड ल्यूमो, ठीक है। इसमें नोटिस करना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो जो इनका नाम है उसी से आप ये चीज डिटेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स से O2 के अंदर मैंने पूछा, ठीक है। अब O2 का कॉन्फ़िगरेशन याद है आप लोगों को, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जो ये O2 का कॉन्फ़िगरेशन था। नाउ इस O2 के कॉन्फ़िगरेशन में विच इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, pi star 2p, नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाबा, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो गया, pi star 2p, it could be 2px or 2py, that's all right, but pi star 2p would be the HOMO, highest occupied molecular orbital, right? What will be the lowest unoccupied, like इसके ऊपर like जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो सब अनऑक्यूपाइड ही है ना,
तो उनमें लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा है? सिग्मा स्टार 2p, करेक्ट। तो ये इसके होमो एंड ल्यूमो हो गए। ठीक है, ये टर्म्स आप ध्यान में रखना, बिकॉज ये टर्म्स आगे यूज होंगे, काम आएंगे, क्योंकि जब बाद में आप मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के बारे में बात करोगे, तो मॉलिक्यूल्स के ये जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, दे विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशंस ना। राइट, हाँ, नहीं नहीं, हाफ फिल्ड रहेगा तब भी मतलब उसको हम लोग ऑक्यूपाइड ही बोलेंगे। ऑक्यूपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। ठीक है, सो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट था, विच वाज theory wise you can say a bit tricky, tedious, but in terms of questions, in terms of problem solving, इसमें बस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर दो, मैग्नेटिक नेचर बता दो। तो दैट वे इट बिकम्स अ वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टार रब कर दिया, माय बैड। इसको मैं पूरा ढंग से लिख देता हूँ। लेट मी एक्चुअली रिमूव दिस मच। इतना क्या क्या था यहाँ पे? होमो वाज pi star 2p and LUMO was sigma star 2p। ठीक है, नहीं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड देखो ना आप, यहाँ पर ये सब जो है ये ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है? पाई स्टार। इसके ऊपर सब अनऑक्यूपाइड होंगे, तो उनमें लोएस्ट कौन सा है? ये सिग्मा स्टार 2p। ठीक है, हाँ, एनर्जी के टर्म्स में ये लाइक दिस इज ऑल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, हाईएस्ट लोएस्ट। ठीक है, हाँ, सो एज आई वाज सेइंग कि आप इसके जब क्वेश्चंस देखोगे बुकलेट में, यू विल अंडरस्टैंड कि काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चंस हैं। डोंट हैव टू स्ट्रगल अ लॉट हियर, दिस इज फेयरली इजी एंड फेयरली स्कोरिंग, एंड इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर का, सो वी शुड बी डन विद दिस चैप्टर सून इनफ, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। ये छोटा सा ही पार्ट रहेगा आयनिक बॉन्डिंग का। ठीक है, तो एक बार क्विक रन थ्रू कर लेते हैं, वी हैव सम 15 मिनट्स विद अस। सो आयनिक बॉन्डिंग का इस चैप्टर में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो काफी लिमिटेड सा डिस्कशन है। इट विल नॉट बी एज एक्सटेंसिव एज व्हाट वी डिड फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग। इट विल बी प्रीटी सिंपल। तो यहाँ पर एक एक करके आयनिक बॉन्डिंग के बारे में हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स समझ लेते हैं। Conditions for forming of ionic bond, like this is something which is what you would have studied long back in your junior classes also, metal, non-metal, so which is now something that you can understand that high delta En between combining atoms hota hai. One of the atoms should have low ionization energy and another one should have high electron affinity. And then there is another property associated or as a condition of formation of ionic bonds, which is this high lattice energy. Now what is this lattice energy, या लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको? तो ये नया चीज है आपके लिए, इसको ध्यान से समझना आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो इट इज सिमिलर टू बॉन्ड एनर्जी, जैसा कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करते हैं, वैसे ही हम लोग
आयनिक कंपाउंड्स में लैटिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे व्हेन वी टॉक अबाउट ionic compounds, they don't form molecules. Like वो कैसे exist करते हैं? They exist in form of crystalline solids. मतलब ऐसे like 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे structures of ionic solids, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। Like for example जैसे NaCl का structure होता है, तो उसमें like ऐसे chloride ions का arrangement रहता है। ठीक है, and you have Na plus ions arranged on these edge centers and body center, right? And इस तरीके से ये पूरा यूनिट सेल बोलते हैं इसको, आप रेप्लिकेट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो ऊपर नीचे आगे पीछे, तो पूरा NaCl का क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, however as part of this chapter we don't need to study all these structures of ionic solids. ठीक है, what we understand is हाँ ठीक है कि आयनिक सॉलिड्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अब इसी के साथ में एसोसिएट है व्हाट वी कॉल एज लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो लैटिस एनर्जी का टेक्निकल डेफिनेशन आप नोटिस करोगे यहाँ पर। व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी इज द amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed from its constituent gaseous ions, right? So for example मुझे MgCl2 का लैटिस एनर्जी का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो 1 mole of MgCl2 forming from its constituent gaseous ions, that is Mg2 plus and Cl minus, like 2 Cl minus लिखना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्री का ध्यान रखते हुए। तो इसमें इस प्रोसेस में जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ, ठीक है, उसको हम लोग लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी बोल रहे हैं। NaCl के केस में कैसा है? You have 1 mole of NaCl forming from its constituent gaseous ions. ठीक है, so it is something which is defined in the other way also, that you have 1 mole of ionic solid, right, and you break it into its constituent gaseous ions, cations and anions, तो उसके लिए कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है, बट दैट डेफिनेशन इज नॉट एज पर एनसीईआरटी। ये हमारा एज पर एनसीईआरटी डेफिनेशन देखना, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट gaseous ions. ठीक है, now having understood this concept, you must also face the reality of it, that lattice energy is something which cannot be experimentally determined. मतलब I can't design an experiment in which मैं कहीं से हवा में से Mg2 plus ions लेके आ रहा हूँ, कहीं से Cl minus ions लेके आ रहा हूँ, लाइक ऐसे हवा में ions नहीं मिलते हैं और उनको लाके यहाँ पे लाइक lattice बना दिया, crystal lattice. So this is not something which can be experimentally determined at all, though they are theoretical estimates. ठीक है, there are theoretical estimates. One set of theoretical estimates कैसे होंगे? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड रहेंगे, लाइक कटायन है, अनायन है, और उनके बीच में लाइक k q1 q2 by r, लाइक उससे यहाँ पर आप ये पोटेंशियल एनर्जी एस्टिमेट करोगे एंड उसमें नोटिस करोगे स्ट्रक्चर कैसे है, एंड उसके पीछे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथ आती है। तो दोज आर वन सेट ऑफ एस्टिमेट्स, एंड द अदर सेट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ लैटिस एनर्जी दे कम फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में से भी हम लोग ये लैटिस एनर्जी का एस्टिमेट कर पाते हैं, एंड वन सच मेथड इज व्हाट इज कॉल्ड एज बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, सो अभी we are going to talk about what Born-Haber cycle is, but इसके पीछे का जो ये अंडरलाइन थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो मैं एक बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को यहाँ पर
साइड में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। लेट से मैं ए से बी जा रहा हूँ, ठीक है। ए से बी जाने में जो मेरा एंथैल्पी चेंज हुआ, जो एंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंज ही मान लो, अभी इसको एनर्जी की तरह यूज करो, से ये डेल्टा H1 होगा, ठीक है। नाउ instead of going directly from A to B, let's say if I go to C and then go to B, ठीक है। एंड इस प्रोसेस में एनर्जी चेंजेस जो हो रहे हैं उसे डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैंने एक साइकिल क्रिएट कर लिया इन विच आई एम गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट बिकॉज यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहेगा, if I go from A to B directly or I go indirectly, my energy change or this enthalpy change should be same. So if out of these three, let's say if I can't determine this one experimentally, इसका मेरे को नहीं आता, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता मैं डिजाइन कि डायरेक्टली ऐसा हो जाए, बट ए से सी और बी से सी का एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेशन हो सकता है, तो I can safely say that delta H1 can be just an addition of delta H2 and delta H3. This is what thermochemistry or thermodynamics teaches us. तो उसी तरीके से यहाँ पर using this underlying concept, ये lattice energy जो है, ठीक है, this is not something which we can experimentally measure, but we can have a theoretical estimate for. And उसको इस थर्मोडायनेमिक एस्टिमेट को निकालने के लिए जो ये ऐसी साइकिल बनाई जाती है, जैसे यहाँ पे साइकिल ही बनाई है मैंने, वो एक स्पेशल साइकिल है जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्न-हेबर्स साइकिल, ठीक है। तो ये बॉर्न-हेबर्स साइकिल, अब व्हेन आई एम गोइंग टू शो दिस बॉर्न-हेबर्स साइकिल टू यू, ठीक है, डोंट थिंक दैट हाउ विल आई create, like I as in you guys, such cycle, ठीक है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ी थी तो मुझे थोड़ा सपना आया था कि ऐसे बना लो तो हो जाएगा काम, मतलब ये एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। व्हेन यू लाइक हैव अ लॉट ऑफ डेटा इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन यू कनेक्ट दोस डॉट्स, देन दोस साइकिल्स इमर्ज, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपके सामने बॉर्न-हेबर साइकिल दिखाऊंगा, बट डोंट थिंक कि ये हम कैसे सोचेंगे, हमें थोड़ा स्ट्राइक करेगा ऐसा कि ऐसा बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं स्ट्राइक करेगा आपको। तो राइट नाउ यू डोंट हैव टू ट्राई टू प्रिडिक्ट कि ये साइकिल कैसा होगा, ऑल यू नीड टू डू इज लुक एट द साइकिल एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। एंड अभी तो मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि याद करो, क्योंकि अभी एक साथ हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा लगे, इट माइट बिकम टू मच टू ग्रास्प, बट एक बार जब आप थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ लोगे तो उसके बाद इट विल बी लाइक कि हाँ मतलब इसमें क्या है, ठीक ही तो है, इट विल बिकम समथिंग लाइक दैट। सो जस्ट ट्राई टू understand that cycle, don't get into the details of it. So this is an example of Born-Haber cycle to determine the lattice energy of NaCl. तो इसमें कैसा है, हम लोग यहाँ पे देखना, ये मेरा A है, ठीक है, ये मेरा B है, ठीक है, और ये सब मेरे C's हैं, ठीक है। जो ये मैंने यहाँ पे ऊपर ही एनालॉजी बनाई थी A to B बट गोइंग वाया C, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज दैट साइकिल दैट हैज बीन क्रिएटेड।
वैसे तो खैर टाइम बचा नहीं है अभी आप लोगों के पास में, लाइक आई वुड नीड सम टाइम टू गो थ्रू दिस साइकिल। तो चलो ठीक है, इसको यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बस यहाँ तक का ध्यान रख लो कि ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, एंड इसके एस्टिमेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ बोलो आयुष। So is the Born-Haber cycle by any means related to Haber's process or the same scientist? नहीं, हाँ मतलब साइंटिस्ट सेम है बट नॉट रिलेटेड टू हेबर्स प्रोसेस। Okay, okay, sir. I was just thinking. हाँ हाँ ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे बॉर्न हेबर साइकिल से। चलो ऑलराइट, एनीथिंग एल्स, किसी को और कोई डाउट पूछना है? ऑलराइट चलो, हाँ हाँ अगला चैप्टर थर्मो स्टार्ट करेंगे फिर। गैशियस स्टेट का हाँ इस वीक में आपका नहीं हो पाएगा, इस वीक एक्चुअली मुझे लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे आई हैव टू बी समवेयर। नेक्स्ट वीक में जहाँ से अपना छूट गया वहीं से रिज्यूम करेंगे गैशियस स्टेट का। ठीक है, इन द मीन टाइम आई विल शेयर दीज होमवर्क क्वेश्चंस विद यू। ठीक है, पुराना भी आपका बचा हुआ है और नया भी आपको करना है। अभी थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल टू अग्री एज इन गेट अ ग्रिप ऑन। ठीक है, हाँ चलो टेक केयर गाइस, गुड नाइट।